بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، اس کہانی کی سے پہلے آپ 34 قسطیں سن چکے ہیں۔ اب آخری قسط ملاحظہ فرمائیں۔ پرکاش کا خط پڑھ کر میں رویا نہیں، میں پاگل بھی نہیں ہوا، میں مسکرا دیا۔ اب تک شاید میں روحانی مدہوشی کے عالم میں زیست و فرار کے دوراہے پر کھڑا تھا۔ پرکاش کے دکھ کو محسوس کر کے میری روح اس سے موجود میری آسمانی تعلق کی بنا پر گدگدا اٹھی۔ پرکاش کے دکھ نے اسے بالیدگی عطا کی تھی۔ میں تو اب تک لاشعوری طور پر اپنی کھوئی ہوئی محبت اور ہمت کو یکجا کرنے ہی میں مصروف تھا۔ وقت کتنے ہی دکھ کسی کی جھولی میں ڈال دے، زندگی کی شاہراہ پر چلتے چلتے اگر پرکاش جیسے لوگ موڑ پر مل جائیں تو یہ زندگی کبھی گرا نہیں گزرتی۔ میں نے وہ خط فوراً ضائع کر دیا تھا اور اپنے سیل میں اس طرح آ کر اپنے بستر پر گرا جیسے کوئی ہزاروں میل کا لمبا سفر یا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہانپ ہانپ کر بے بس ہو چکا ہو۔ لیکن یہ کیفیت وقتی تھی، پھر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پونم کی محبت نے مجھے جینے کی نئی امنگ دی تھی، میرے ڈاواں ڈول ذہن کو عمل کی راہ پر گامزن کیا تھا۔ میں خود کو اس لمحے کے لیے تیار کرنے لگا جب مجھے محبت کی اس وینس کا سامنا کرنا تھا۔ اس روز جب مجھے عدالت میں پیش ہونے کے لیے جیل نمبر دار لینے آیا تو جیسے زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میرے قدم من کے بوجھل ہو رہے تھے۔ بار بار ایک ہی سوچ مجھے پریشان کیے دے رہی تھی، میں پونم سے سامنا کیسے کر پاؤں گا؟ اور آخر وہ لمحہ بھی آ گیا تھا۔ پرکاش نے جان بوجھ کر ایسا موقع منتخب کیا تھا کہ ہم تاریخ بھگت کر واپس جا رہے تھے۔ میں بس کے کونے والی سیٹ پر سر جھکائے بیٹھا تھا جب لوگوں کے ہجوم میں میری نظر اس وفا کی دیوی پر پڑی۔ سفید ساڑی میں ملبوس وہ پرکاش کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں کی پتلیوں نے حرکت کرنا بند کر دی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ یہی تھا ہجرت کر جانے کا لمحہ۔ تب میری توانائیاں، تربیت، چالاکی، ہوشیاری سب ہی تو مجھے اس کے حضور اکیلا چھوڑ گئیں۔ سارے سبق مجھے یاد تھے لیکن فرار کی راہ نصیب نہیں تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے، مبادا اس ابصرا کی تصویر دھندلی پڑ جائے۔ میں اسے ذہن کے کسی ایسے گوشے میں محفوظ کر لینا چاہتا تھا جہاں سے لاکھ کھرچنے کے بعد بھی اسے مٹا نہ پاؤں۔ ان لمحوں کو میں اپنی شریانوں میں محفوظ کر لینا چاہتا تھا تاکہ خون کی گردشیں اس سراپائے اثار وفا کو میرے اندر ہمیشہ زندہ رکھیں۔ ڈرائیور نے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھا تو محبت کی پاربتی نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ مجھے الوداع کہہ رہی تھی، اگلے جنم تک کے لیے۔ اسے اب بھی وشواس تھا کہ ہم اگلے جنم میں ضرور ملیں گے۔ میری آنکھیں یوں چھلکیں جیسے ساون کی برکھا اچانک ہی برسا کرتی ہے۔ آنسوؤں کی یہ تیز دھارے جانے کتنی اہن پوچھ چٹانوں کا سینہ چیر کر باہر آئے تھے۔ یہ میری بزدلی نہیں تھی، مجھ میں برداشت کا حوصلہ بہت تھا۔ بے حوصلہ ہوتا تو وہیں مر جاتا۔ میں ان آنسوؤں کے لیے خود سے کبھی شرمندہ نہیں ہوا۔ یہ تو نذرانہ عقیدت تھا جو میری آنکھیں اس شہید وفا کے حضور پیش کر رہی تھیں۔ یہ آنسو تو محبت کی مہراج تھے، سات سمندر ان کے آگے ہیچ ہیں۔ جب تک بس نے اگلا موڑ نہ کاٹ لیا میں گردن موڑے اسے دیکھتا رہا۔ میں بھی رونا چاہتا تھا، بچوں کی طرح بلک بلک کر دھاڑے مار مار کر اپنی محبت کا نوحہ لاپنا چاہتا تھا، لیکن میں کس کے گلے لگتا؟ کون مجھے طفل تسلیاں دیتا؟ میں کتنا اکیلا تھا، کتنا تنہا تھا۔ میں اپنا دیس یاد آ گیا ہوگا میاں جی۔ میرا ساتھی جو میرے ساتھ ہی ہتھکڑی سے لیس تھا میری طرف ہمدردی سے دیکھنے لگا۔ برے کام کیے تو یہ دن دیکھنا پڑا، اب روتے کیوں ہو؟ حوصلہ کرو، کوئی بات نہیں، ہمارے بھی اس طرف گرفتار ہیں، سب کو آ کر اپنے گھر کو لوٹنا ہے، ہماری گارد کے ایک گیانی قسم کے سپاہی نے مجھے کہا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے وہاں موجود دوسرے حوالاتیوں کی ریمارکس سنتا رہا۔ کوئی مجھ پر ترس کھا رہا تھا، کوئی مجھ پر غصہ کر رہا تھا، کوئی مجھے تسلیاں دے رہا تھا اور کوئی جنگ کو گالیاں۔ جیل واپس پہنچنے تک میں پونم کی بکھری یادیں سمیٹتا رہا۔ فرار کے امکانات کو میں نے ہمیشہ مد نظر رکھا تھا، لیکن یہاں موجود اپنے ہم وطنوں سے اس کی توقع فضول تھی۔ عزیزیں برداشت کرتے کرتے یہ لوگ بے بسی کا شکار ہو چکے تھے اور انہوں نے حالات کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ جبکہ ان کے خیالات جاننے کے لیے میں نے ایک دو مرتبہ بالواسطہ گفتگو چھیڑی تو مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ پھر میرے ذہن نے ایک دوسری لائن پر کام کرنا شروع کر دیا۔ یہاں ایک قتل کا ملزم دلیپ سنگھ بھی ہمارے ساتھ ہی بنا تھا اور میرے ساتھ اس کی خاصی دوستی بھی تھی۔ وہ پنجاب کے ایک سرحدی دیہات کا رہنے والا تھا اور سمگلنگ کرنے کی شدید خواہش رکھتا تھا۔ میں نے یہاں اپنا تعلق سمگلروں کے جس گروپ سے ظاہر کیا تھا وہ اتنا بااثر گروپ تھا کہ شاید ہی سرحدی دیہات کا کوئی شخص اس سے نہ واقف ہو۔ دلیپ سنگھ کی بڑی خواہش تھی کہ اس کا رابطہ بھی اس گروپ سے قائم ہو جائے۔ میں نے اس کی اس نیک خواہش پر کام کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ دلیپ سنگھ کو چند روز قبل ہی 20 سال قید کی سزا ہوئی تھی اور چند دنوں میں ہی اس کا چلان دوسری جیل میں جانے والا تھا۔ میں نے 2 دن میں ہی اس کا ایمان خراب کر دیا۔ ہمارا منصوبہ کچھ اس طرح طے پایا تھا کہ میں کل ہی عدالت میں سرحد پار کرنے کا اقبال جرم کر کے سزا پا لوں گا
اور سزا پاتے ہی پاکستانیوں کو ایک خاص جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ دلیپ سنگھ بھی اپنا چلان اسی جیل میں ڈلوا لے گا۔ ہم دونوں کو اکٹھے ہی گارد لے کر جائے گی۔ راستے میں اس کے ساتھیوں کی مدد سے ہم فرار ہو جائیں گے، اکٹھے پاکستان پہنچیں گے، جہاں سے اس کو ہم کسی دوسرے ملک بھجوا دیں گے، اور 3-4 سال بعد جب وہ کروڑ پتی بن جائے گا تو بھارت پر لعنت بھیج کر اپنے باقی گھر والوں کو بھی اسی ملک میں بلا کر آباد ہو جائے گا۔ یہ منصوبہ میں نے کچھ اس چالاکی سے اس کے ذہن میں ڈالا تھا اور اس کے سامنے مستقبل کا ایسا سہانا نقشہ کھینچا تھا کہ دلیپ سنگھ پاگل ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے جوانا، اس نے بالآخر فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا، دیکھنا کہیں موقع پر پیٹ نہ دکھا جانا۔ میں نے اسے غیرت دلائی، میں سکھ کا بچہ ہوں میاں، کسی لالے کی اولاد نہیں۔ دلیپ سنگھ مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا، اگلے روز میری تاریخ تھی، میں نے اقبال جرم کر لیا اور عدالت نے مجھے 1.5 سال قید کی سزا سنائی۔ دلیپ سنگھ نے اپنی ملاقات پر اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں لے کر مدد پر آمادہ کر لیا اور قریباً 3-4 روز کے بعد ہمارا چالان ناب جیل کے لیے ڈال دیا گیا۔ اسی اثناء میں دلیپ سنگھ نے جیل کے ڈاکٹر سے ساز باز کر کے اس کی مٹھی گرم کی اور انسانی ہمدردی کا واسطہ دے کر اسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ میرے لیے یہ سفارش کر دے کہ میں جعلی بیماری کی وجہ سے جس کا شکار میں سزا کے فوراً بعد ہو گیا تھا، لوہے کی سلاخوں والی بیڑی کے ساتھ سفر نہیں کر سکوں گا، مجھے سنگل والی بیڑی پہنا دی جائے۔ ہم نے اس بات کی کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی کہ میری بیڑی بدل جائے گی۔ ڈاکٹر کو صرف یہی علم تھا کہ دلیپ سنگھ نے یہ کام میری ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ جلد بدیر ہم دونوں رہا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم مل کر سمگلنگ کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، جب اس نے کسی کی بگڑی بنانی ہو تو غیب سے اس کے لیے ایسا سامان پیدا کرتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس روز صرف ہم 2 قیدیوں کا چالان جا رہا تھا اور ہمیں لے جانے والے ایک بوڑھا حوالدار اور 2 سپاہی تھے۔ جیل سے باہر نکلتے ہی وہ ہمارے یار بن گئے۔ ایک تو وہیں سے غائب ہو گیا کیونکہ اس نے اس کام کے لیے پہلے ہی سے اپنا TADA اپنے ساتھیوں کو دے دیا تھا۔ اب ایک حوالدار اور ایک سپاہی ہمارے ساتھ رہ گئے تھے۔ میں نے جیل میں داڑھی اور مونچھیں اس قدر بڑھا لی تھی کہ پگڑی باندھنے پر کوئی بھی مجھے شناخت نہ کر پاتا۔ چونکہ سفر کے آغاز ہی میں 50 روپے ان کو چائے پانی کے لیے دلیپ سنگھ نے دے دیے تھے، اس لیے وہ ہم پر مٹے جا رہے تھے اور خاصے مہربان نظر آتے تھے۔ میں نے دانستہ پرکاش کو اس تبادلے سے بے خبر رکھا تھا، البتہ اس کی طرف سے وقتاً فوقتاً ملنے والے پیسے جو اب قریباً 400 روپے ہو چکے تھے میرے پاس موجود تھے۔ ہم دونوں نے دھاری وال کی بنی بڑی بڑی چادریں اوڑھ رکھی تھیں اور میں نے بھی دلیپ سنگھ کی طرح سر پر پگڑی باندھ رکھی تھی۔ جب تک خود میں کسی سے تعارف نہ کرواتا مجھے بھی بھارتی قیدی ہی سمجھا جاتا۔ سکھوں کی روایتی کمزوری شراب کی بوتل کی شکل میں پولیس والوں کے پاس دلیپ سنگھ کے رشتہ داروں نے بوتل پہنچا دی تھی جو ہمیں جیل کے باہر ملنے آئے تھے۔ گرداسپور سے ہم ایک ٹرین کے ذریعے امرتسر پہنچے، جہاں سے رات کو ہم ایک پیسنجر میں سوار ہو گئے جس کے ڈبوں میں سواریاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ کھڑکی کے نزدیک ہی ہم نے 2 برتھوں پر قبضہ کر لیا۔ اسٹیشن سے دلیپ سنگھ نے مجھے مچھلی خرید کر دی تھی اور ٹرین چلتے ہی دونوں پولیس والے اور دلیپ بوتل پر ٹوٹ پڑے۔ دلیپ سنگھ نے خود بمشکل 1 یا 2 پیک پیے تھے۔ مجھے انہوں نے رسماً دعوت دی، لیکن میرے صرف ایک بار نہ کہنے کو بھی کافی سمجھ کر چپکے ہو رہے۔ لدھیانہ کے قریب ٹرین پہنچی تو حوالدار سونے کے لیے اوپر برتھ پر چلا گیا۔ ہم دونوں ایک ہی ہتکڑی میں بندھے ہوئے تھے۔ دوسرے سپاہی کو بھی بار بار اونگ آنے لگی تھی، کچھ شراب کا نشہ اور کچھ شدید سردی۔ نیند سے لڑنے کی کوشش میں اس کی آنکھیں کبھی بند ہوتی اور کبھی کھلتی تھیں۔ جیسے ہی ہم لدھیانہ سے چلے میں نے دلیپ سنگھ کو تیار کیا، اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں رضامندی ظاہر کر دی۔ سپاہی نے ہماری ہتکڑی کا کڑا اپنی پیٹی سے نکال کر بائیں ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ مہاراج جی ذرا پیشاب کریں گے، دلیپ سنگھ نے اونگتے ہوئے سپاہی سے کہا۔ اس نے لال لال آنکھوں سے ہماری سمت دیکھا اور شراب کے نشے میں لڑکھڑاتی زبان سے اجازت دے دی۔ ہماری برتھ کی پشت ڈبے میں بنی لیٹرین سے ملی ہوئی تھی، خود وہ گدھا وہیں بیٹھا رہا۔ ہم دونوں ہتکڑی سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ یہاں گاڑی کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی۔ اٹھنے سے پہلے میں ہتکڑی سے اپنا ہاتھ نکالنا نہیں بھولا تھا۔ لیٹرین کی طرف جاتے ہوئے ہم نے مڑ کر ایک مرتبہ پھر اونگتے ہوئے سپاہی اور نیند میں خراٹے لیتے ہوئے حوالدار پر نظر ڈالی اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ لیٹرین کے نزدیک میں نے ہاتھ ہتکڑی سے باہر نکال لیا۔ دلیپ سنگھ حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ واہ گروجی، اس نے مجھے بے اختیار داد دی۔ ہم نے دروازہ کھولا اور پائیدان پر پاؤں رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے اندھیرے میں چھلانگیں لگا دی۔ ٹرین کی رفتار کم تھی اور خیریت گزری، مجھے تو کوئی چوٹ نہ آئی۔ میں نے پہلے چھلانگ لگائی تھی، اس کے بعد دلیپ سنگھ کودا۔ جب تک ٹرین گزر نہیں گئی میں زمین سے چپکا لیٹا رہا۔ اس کے ساتھ ہی میں بجلی کی پھرتی سے اٹھا، نہ جانے میرے جسم میں اتنی طاقت کہاں سے اود کر آئی تھی۔ ریلوے لائن کے قریب 2 پتھر میں نے اٹھائے اور ایک دوسرے کے اوپر بیڑی کے کڑے بار بار رکھ کر ضربیں لگائیں۔ ریت ٹوٹی اور میں آزاد ہو گیا۔ اس عمل میں مشکل 1 منٹ
सर्फ हुआ था। मेरी नजरें अभी तक दूर जाती गाड़ी की रोशनियों पर जमी हुई थी। मुझे हैरत हुई दिलीप सिंह अभी तक अपनी जगह से नहीं उठा था। जब भागकर उसके नजदीक गया तो मेरा दिल टूट गया। मेरे मोशन से अंदाजे की गलती हो गई थी और वह बजाय दूर गिरने के पत्थरों के ऊपर ढेर हो गया था। उसका सर फट चुका था और वो बेहोश पड़ा था। दिलीप से हाँ और दिलीप से हाँ, मैंने उसे करीबन झंझोर डाला लेकिन वो बददस्तूर खामोश रहा। मेरी नजरें अभी तक गाड़ी की बत्तियों पर जमी थी। झुककर उसकी धड़कनें सुनी। वो जिंदा था लेकिन चोट खासी ज्यादा लगी थी और अभी मैं उसी शशोपंज में मुब्तला था कि क्या करूं या क्या ना करूं कि मुझे गाड़ी की रोशनियां ठहरती नजर आई। शायद हमारे इफरार की इतला हो गई थी और पुलिस वालों ने जंजीर खींचकर गाड़ी रोक ली। अब सिवाय भागने की और कोई चारा न था। मैंने अलविदाई नजर अपने मोहसन पर डाली, उसे बड़े दुखी दिल से खुदा हाफिज कहा और दीवाना वार एक समत में भागने लगा। भागते भागते हाँपने लगता तो रुक कर सांस लेने लगता। मुसलसल मुशक्कत से न जाने कौन से जख्म हरे हो गए थे कि वजूद फिर दुखता हुआ फोड़ा बन गया। टांग की तकलीफ दोबारा ओद कर आई लेकिन इन जख्मों की परवाह किसे थी। आज़ादी के खूबसूरत तसव्वुर के सामने ये सख्तियां, ये दुख सब हीच थी। मुझ पर भागने का जुनून सवार था। सुबह तक मैं भागता और चलता रहा। इस दौरान गिरफ्तारी का खौफ बराबर मुझ पर मुसल्लत रहा। मुझे इल्म था कि पुलिस बुखलाए हुए कुत्ते की तरह मेरा पीछा कर रही होगी, लेकिन मैंने भी अब दिल में तहैया कर लिया था कि कभी जिंदा उन वहशियों के हाथ नहीं आऊंगा। सुबह के करीब जिस जगह मैं पहुंचा ये देखकर हैरान रह गया कि यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ। मैंने रातों रात ही 20 मील से ज्यादा सफर तय कर लिया था और करीबन शाम ढले मैं दुनिया नगर पहुंच चुका था। दुनिया नगर का लारी अड्डा मामूली सा है। पंजाब से कश्मीर को आने जाने वाली बसें यहाँ चंद मिनट के लिए सिर्फ सवारियां उतारने ठहरती हैं। वैसे तो पंजाब, राजस्थान और कश्मीर के तमाम स्टेशन, होटल, लारी अड्डे, बस स्टैंड, आश्रम और सराएं इंडियन सिक्योरिटी से भरी रहती थी, लेकिन खास तौर से जम्मू से गुरदासपुर, डेरा बाबा नानक और सरहद के साथ साथ अमृतसर के इलाके पर उनकी खास नजर थी। बसों की आमदोरफ्त जारी थी। मैं तेजी से चलता हुआ बाजार के आखिरी सिरे पर पहुंच गया, जहां से बसें मुड़कर बड़ी सड़क पर पहुंचती हैं और अब वहीं एक तरफ दरख्त की ओट में खड़ा था ताकि पंजाब की तरफ जाने वाली किसी भी लारी में सवार हो सकूं। एक बस मध्यम रोशनी के साथ नमूदार हुई और मैं खुदा को याद करके उसमें सवार हो गया। अंदर बैठकर सबसे पहले मैंने अपनी हालत का जायजा लिया। खुदा का शुक्र था कि तमाम कपड़े सही सलामत थे, वरना यहाँ फिर पता नहीं कौन सी बिपता आन खड़ी होती। ये बस अमृतसर को जा रही थी। अमृतसर बॉर्डर से मैं सिर्फ नक्शे की हद तक वाकिफ था। खुद पार करने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था, लेकिन उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। मैंने अपने जहन में सोचा कि चुपचाप अमृतसर का टिकट खरीद लूं। अगरचे रास्ते में और शहर भी आने थे जहां चेकिंग का खतरा था, लेकिन मैंने अब खुद को हालात के रहम करम पर छोड़ दिया था। रात का सफर था। मैं सारे रास्ते ऊँगने की एक्टिंग करता गया। लारी भी पंजाब रोड वेज की एक्सप्रेस टाइप कोई चीज थी। क्या मजाल जो किसी शहर में 5 मिनट से ज्यादा ठहरी हो। सारे रास्ते गालबन वो 3 या 4 जगह रुकी होगी। जहां लारी रुकती मैं ऊँगता ऊँगता अगली सीट पर बाजू जमाकर उस पर अपना सर रखकर सो जाने की एक्टिंग शुरू कर देता। उसी असना में अपने साथ वाली सवारी की छुट्टी करवाने के लिए मैं उससे 5-6 मरतबा टकरा भी चुका था। वो भी बड़ी ढीठ हड्डी का मालूम होता था। वहीं जमा बैठा रहा। रात गए हम लोग अमृतसर पहुंच गए थे। मैं जल्द अज जल्द शहर के दूध से बाहर निकलना चाहता था। वो रात मैंने अमृतसर के एक नवाही खेत में छुपे छुपे काट दी। उससे पहले मैं 2 रातों का जागा हुआ था। सर्दी से बचने के लिए बार बार जिस्म को हरकत देनी पड़ती थी। नींद बार बार मुझ पर हमला करती रही, लेकिन मुझे इल्म था अगर आज सो गया तो शायद फिर कभी जाग न सकूंगा। अब मुझे फौरन फैसला करना था कि बॉर्डर किस तरफ से पार किया जाए। अमृतसर, डेरा बाबा नानक, कलानूर, ये 3 नाम मेरे जहन में घूम रहे थे। मिलाकर जहन ने फैसला डेरा बाबा नानक के हक में दिया। दोपहर होने पर एक करीबी विष्णु ढाबे पर 2-3 फुलके जहर मार किए और चाय का 1 कप एस्प्रिन के साथ पीकर मैं 4 बजे के करीब डेरा बाबा नानक जाने वाली लारी पर सवार हो गया। उस इलाके से मैं कुछ वाकिफ था। करीबन 5 बजे मैं शाहपुर के नजदीक उतर गया और एक गांव की तरफ चल दिया जहां से मुझे बॉर्डर पार करना था। मैं सड़क के किनारे चला जा रहा था। रास्ते में जगह जगह आर्मी ने मोर्चे खोद रखे थे। खेतों में बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी और फसलें जो कटाई की मुंतजिर थीं तबाह होती जा रही थी। मेरे साथ साथ और भी इर्द गिर्द के देहातों के लोग आ रहे थे और हम सबको फौजियों की मुसलसल घूरती हुई आंखों का सामना करना पड़ रहा था। रास्ते में पड़ने वाले देहातियों में इक्का दुक्का आदमी ही दिखाई देता था। मेरे पीछे पीछे आने वाले देहाती अब एक एक करके खत्म हो गए थे और अब मुझ अकेले को घूरती हुई नजरों का सामना करना पड़ रहा था। ठहरो, एक मोर्चे के करीब से गुजरती हुई आवाज सुनाई दी। मैं हड़बड़ा कर रुक गया। किधर जाना है? एक लंबे तिरंगे सिख सूबेदार ने मुझे घूरते हुए पूछा। पखियों महाराज। मैंने करीबी गांव का नाम ले लिया था। क्या नाम है तुम्हारा? अमरजीत महाराज जी। कहाँ से आ रहे हो? महाराज जी गमटाले से। किससे मिलना है? सरपंच से महाराज। क्या नाम है सरपंच का?
परमजीत सिंह महाराज, इर्द गिर्द के 10 गांव के सरपंचों के नाम तो मुझे हिफ्ज दे। ठीक है, जल्दी जल्दी निकल जाओ यहाँ से, उसने मुतमईन होते हुए कहा और मैं उसको सत श्री अकाल कहकर अपनी मंजिल की जानब चल दिया, जहाँ अभी और मुसीबतें मेरी मुंतजिर थीं। पखियों से मैं रोए पहुंच गया, जहां से मैं बकटाने के साथ वाक़े भारतीय पकड़ के साथ साथ सरहद अबूर करना चाहता था। सामने दाएं तरफ दरिया के साथ पाकिस्तानी पकड़ और बाएं तरफ सिर्फ बेले का इलाका था। यहाँ से बॉर्डर कम और कम मील भर की मुसाफत पर वाक़े था और एरिया भी ऐसा जिसके चप्पे चप्पे पर इंडियन आर्मी या तो खुद डिप्लॉय थी या उसने ज़मीन दोज सुरंगें माइंस दबा रखी थी। उस जगह से बॉर्डर पार करना कितना खतरनाक था उसका मुझे बखूबी इल्म था, लेकिन अपने मुल्क पहुंचने की तमन्ना और अपनी बका की जंग जो मैं लड़ रहा था उसके सामने इस खतरे की जर्रा भर भी अहमियत न थी। मैं कमाद के खेत में छुपा अंधेरा फैलने का मुंतजिर था ताकि किस्मत आजमाई कर सकूं। अब अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। खेत के बाहर सरकंडों का एक छोटा सा सिलसिला था और उसके आगे खुदे हुए फौजियों के मोर्चे, जिनके दरमियान से गुजर कर मुझे भारतीय पकड़ के करीब पहुंचना था ताकि मैं वहां से सरकंडों की आड़ में चलता हुआ खुशकी के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो सकूं। यहाँ हमारी पोस्टें थीं क्योंकि दरिया के आगे तकरीबन 5-6 मील का एरिया पाकिस्तानी इलाके में ही था और उसके बाद बॉर्डर लाइन शुरू होती है। अभी मैंने कमाद के खेतों से सर बाहर निकाला ही था कि मेरे करीब ही करीबन 25 या 30 फुट दूर जोरदार धमाका हुआ। कालबन कोई बारूदी सुरंग फटी थी, उसके साथ ही गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज गूंजने लगी। भारतीय फौजियों के पास न जाने इतना असला कहां से आ गया था कि वो बगैर देखे भाले खामखा फायरिंग शुरू कर देते। मेरे करीब से रोशनी राउंड फायर हुआ और फिर वो रुक गए। मैं वहीं दुबक कर बैठ गया था। रोशनी में होम गार्ड्स के जवान खाकी वर्दियां पहने हाथों में राफिले थामे इधर उधर से भागते नजर आ रहे थे। खुदा ने एक और कर्म किया कि मुझे अपने करीब वाले मोर्चे का भी इल्म हो गया। वहां अभी तक मैं उससे बेखबर था। गालबन किसी होम गार्ड का पांव गलती से बारूदी सुंग पर आ गया था जिसकी वजह से वो फट गई। 15-20 मिनट बाद उनकी भाग दौड़ खत्म हो गई और माहौल पर एक मर्तबा फिर पहले जैसा सन्नाटा तारी हो गया। मेरी आंखों के सामने बूढ़ा और सर्द आसमान अपने दामन में हजारों सितारों के साथ ठहरता हुआ नजर आ रहा था। मुझे मालूम था कि सामने शक्करगढ़ पर भी यही आसमान नन्हे मुन्ने जुगनुओं के साथ साया फिगन है और वहां से कुछ दूर एक शहर बेमिसाल में मेरे माँ बाप बहन भाई आराम से रजाइयां और लिहाफ ओढ़े इत्मीनान की नींद सो रहे हैं। इस बात से कतई बेखबर के उनसे कुछ फासले पर मैं जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हूँ। मैंने चादर को लोंगोटी की तरह बांध रखा था। मेरे पांव नंगे थे और मैं पिंडलियों तक शबनम से भरा हुआ था, लेकिन मुझे सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। शदीद सर्दी के बावजूद मेरे माथे पर पसीने के कतरे उभर आए थे और मुझे अपने वजूद में खून की जगह अंगारे दौड़ते हुए महसूस हो रहे थे। रात अपने सीने में हजारों वहशतें समेटते रींग रींग कर सूरज देवता की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। अपने उसान बहाल करने के लिए दिल ही दिल में एक मरतबा फिर मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और बड़ी एहतियात से चलता हुआ खेतों से बाहर निकल आया। अब एक खाली किताए जमीन जो गालबन 15-20 गज लंबा था मुझे रिंग कर तय करना था। उसके बाद सरकंडों का वो सिलसिला था जिससे गुजर कर मुझे आगे पकड़ की तरफ बढ़ना था। तमाम एरिया आर्मी ने मुकम्मल कैमोफ्लेज कर रखा था। किसी भी वक्त किसी भी लम्हे मेरा पाँव या जिस्म का कोई और हिस्सा किसी भी बारूदी सुरंग को छू सकता था। फिर एक धमाका और जिस्म के परखचे उड़ जाते। मैं रिंगता हुआ सरकंडों की तरफ जा रहा था। एक एक लम्हा कयामत ढा देने वाला था और अब मैं उस मकाम पर आ गया था जहां से वापस लौटना भी मौत था और उससे आगे बढ़ना भी मौत। मेरे चारों तरफ मौत अपनी तमाम तर वहशतों के साथ रक्स कर रही थी, लेकिन मैं जिंदगी के लिए इससे चुमुखी जंग लड़ रहा था, उस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला की मदद से इंशाअल्लाह अपने मुकद्दस वतन की ज़मीन पर पहुंच जाऊंगा या फिर मर जाऊंगा, क्योंकि जिंदा उन भेड़ियों के हाथ आना सिसक सिसक कर मरने वाली बात होती। दिल की तेज तेज धड़कनों के साथ अब मैं मोर्चों के ऐन नीचे पहुंच चुका था। नीम दायरे में बने हुए ये मोर्चे मुझ से 10-15 फीट की ऊंचाई पर वाक़े थे, जिनके नीचे सरकंडों की एक कितार सी फैलती चली गई थी। मैं अब मोर्चों से गुजरकर बेले में दाखिल हो गया जहां मुझे उम्मीद थी कि अब खतरा टल गया है। अचानक मेरे पीछे धमाका हुआ और सारा माहौल नंगा हो गया। करीब ही छुपे हुए किसी फौजी ने जो वहां पोजीशन लिए बैठा था मुझे देख लिया था और उसने रोशनी राउंड फायर कर दिया था। हाल्ट किसी की जोरदार आवाज गूंजी और मैंने बड़ी फुर्ती से सामने बड़ी बड़ी लंबी जंगली घास बेले में छलांग लगा दी। फिर मैं कमर के बल झुककर तेजी से भागने लगा। गोलियों की सुर्ख लकीरें मेरा ताक़ुब कर रही थी। मेरे कानों के दोनों इतराफ शाई शाई की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन मैं जनूनियों की तरह उस पोजीशन में दौड़ा चला जा रहा था। मेरी पिंडलियों से खून रिसना शुरू हो गया था और दिल का यह आलम था कि जैसे सीना फाड़ कर बाहर आन गिरेगा। सर्दी गर्मी का एहसास मर चुका था। बस ज़हन में एक ही आवाज मुसलसल गूंज रही थी, दौड़ो दौड़ो, तेज और तेज।
उन तमाम बातों के बावजूद मेरा ज़हन मुकम्मल तौर पर बेदार था। मुझे इल्म था कि अगर मुझसे ज़रा सी भी समत का गलत अंदाज़ा हो गया तो मुझे घेर कर मार डालेंगे। अब मैं बुर्जियों पर पहुंच चुका था जो बॉर्डर की हद होती है। छलांग लगाई और पाकिस्तानी धरती में समा गया। मेरे पीछे फायरिंग अभी तक जारी थी। अचानक हाल्ट की आवाज़ गूंजी और मैं रुक गया, जैसे ये सब कुछ बिजली का कोई अमल हो। हैंड्स अप, दोबारा ललकार गूंजी। मैंने हाथ खड़े कर दिए। मेरे सामने मेरे रेंजर्स खड़े थे, मेरी सरहदों के निगहबान। उन्होंने यूं तो मेरे एतबार से ही मुझे जान लिया था। बहरहाल वो मेरे अपने थे, लेकिन ज़ाब्ते की कार्रवाई भी कोई चीज़ होती है। कौन है? एक जवान ने करख्त लहजे में पूछा। जवाब में मेरी आंखों से आंसू बह निकले और यही मेरी पहचान थी। उनके राइफल बरदार हाथ नीचे दुबक गए। हम लोग पोस्ट पर चले आए। उन सब की नजरों में एक ही सवाल की परछाइयां हुलकोरे रही थी। मेरी जिस्मानी हालत ने उन्हें इस बात का यकीन तो दिला दिया था कि मैंने अपने फर्ज में कोताही नहीं की। वो भी अपने फराइज से गाफिल नहीं रहे थे। अपनी जगह हर कोई सच्चा भी था और झूठा भी। जिस तरह मेरे ज़हन में सवालात का लावा खोल रहा था, उसी तरह उनकी नजरें भी मेरी तरफ उसी उम्मीद में उठी थीं कि शायद मैं उन्हें बता सकूं। जब हम सब ने अपनी ताएं कोई कोताही नहीं की तो आखिर हम लुट कैसे गए? हमें दरमियान से तोड़कर किसने मफलूज कर दिया? किसकी नजर हमारी मोहब्बतों को खा गई? लेकिन मैं उन्हें क्या बताता? मेरे पास कहने को था ही क्या। मैं तो खुद उनसे सुनना चाहता था, जानना चाहता था कि हमारी रियासतों का समर क्या यही था? क्या उसी रोज़े बद को देखने के लिए हमने अपने आप को त्यागा था? हम सब टुकर टुकर एक दूसरे को देखते रहे, खामोशी से, बेबसी से, मुजरमों की तरह, जैसे हम इन्हें घात लगाकर अपना शिकार खेला हो। एक जवान जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ले आया। किसी ने सिगरेट की डबिया मेरी तरफ बढ़ा दी। न जाने क्यों, न चाहते हुए भी मैंने सिगरेट सुलगा लिया। अपने वतन के कड़वे कसीले धुएं का भी अपना एक सरूर होता है। मैं सिगरेट नोश नहीं था, लेकिन उस रोज मैंने एक अजीब सा कैफ महसूस किया। धुएं के मरगोले बन बन कर टूटे और टूट टूट कर बने। मेरी नजरों के सामने फैलती धुएं की लकीरें मुझे अपने संग लिए मेरे घर के आंगन में जा पहुंची, जहां मेरी माँ थी, बाप था, बहन थी, भाई थे और बहुत सी मोहब्बत करने वाले। वो सब आंखों में उम्मीद की जो जगाए होंठों पर लरसती दुआएं लिए जाने कब से मेरी आबरूमंदाना वापसी के मुंतजिर थे। लेकिन मैं उनका सामना कर भी पाऊंगा? क्या बताऊंगा मैं उन्हें? मेरे पास सुनाने को था ही क्या? बस पूनम की कहानी, लेकिन उसके सुनने का वक्त किसके पास होगा और सुनाने का यारा किस में होगा? फिर मंजिल बदला और पूनम आहनी चट्टान बनकर मेरे सामने तन गई। दगाबाज, तुम में हिम्मत है तो मेरी यादों से फरार पाकर दिखाओ। मुझे जिंदगी के नर्क में झोंका है तो क्या ज़मीर के जहन्नम से बच निकलोगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। उसकी परछाइयां न जाने मुझसे क्या कुछ कहती रहीं और मैं सर नहोड़े उसकी यादों के हजूर आंसुओं का नजराना पेश करता रहा। ये सिलसिला कभी खत्म न होता अगर मेरे गालों से फिसलते आंसू कमीज के दामन पर न गिरते। हौसला कर शेरा, तकलीफ तो कट गई। ये तो शेरा अपना मुल्क है, बच्चा खुशियां मना, तूने नया जन्म लिया है, नया जन्म। एक बूढ़े हवालदार ने, जिसकी जुड़ी हुई मूछें उसके जवान इरादों की गुमाज थी, मेरे कंधे पर हाथ रख कर मुझे हौसला दिया। चाचा, ये खुशी के आंसू हैं। मैं उसे चाहते हुए भी न बता सका, न कह सका कि ये पछतावा तो मुझे उम्र भर रुलाएगा। घर वालों को मेरी आमद की इतला मिल चुकी थी। दरवाजे पर मेरा बूढ़ा बाप चेहरे पर झुर्रियों का जाल सजाए मेरा मुंतजिर था। बाप से गले मिलकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे एक लम्हे को सारे दुख उसकी आगोश में खो गए हूँ। घर की दहलीज से लगी बरकत की ठंडी छाया बनी मेरी माँ एक कोने में मोहल्ले की दूसरी औरतों के दरमियान फखर से सर बुलंद किए बैठी थी। माँ से लिपट कर मैं नौजायद बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरी सारी तमन्नाइयां खो गईं। जब्त के बंधन कच्चे धागों की तरह टूट गए। बेटा, रोना किस बात का? तूने हमारा मान बढ़ाया है, तूने मेरी धारों की शर्म रखी है। बेटा, तू मेरा नूर बनकर लौटा है। मैं माँ के फराग सीने से लिपटा रोता रहा। वो मेरी पीठ पर दस्ते शफकत रखे मुझे तसलियां देती रही। वहां बारी बारी सब ने मुझे गला लगाया। कोई रो रहा था, किसी ने मेरी माँ की तरफ आंसुओं का गला घोंट दिया था, किसी की सिसकियां मेरी तरह अंदर ही अंदर दम तोड़ रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ ना पूछा, शायद मेरे दुख को समझ रहे थे, मेरे अपने थे ना। फिर सबको मेरे जिस्म की फिक्र दामनगीर हुई। देसी नुस्खों और वलायती दवाइयों के अंबार लग गए। एक से एक बढ़कर डॉक्टर, एक से एक बढ़कर हकीम मेरा इलाज करने लगा। मेरे अंदर का कर्ब बाहर के रोग से कहीं ज्यादा था, लेकिन वो लेंस जो मेरे अंदरूनी दर्द का एक्सरे दिखा सके किसी की आंखों में कहा। एक माँ थी जिसके दूध ने मेरे रोग को किसी हद तक जाना था। बेटा, तू जब यहाँ नहीं था तो हम तेरी यादों के सहारे जीते थे। जब कभी तेरी याद तड़पाती तो उन हजारों माओं के लाल याद आ जाते जो तेरी तरह वहां हसीर थे, और दिल से दुआ निकलती, मौला सबकी माओं के कलेजे ठंडे कर दे। अब तू आ गया है तो अपना जिस्म लेकर बेटा अपनी रूह को वापस बुला ले, वरना वो सारे लोग जो हमने अंदर ही अंदर मार दिए थे किसी रोज जिंदा पीर की तरह बेदार हो जाएंगे। तब फिर शायद। मैंने माँ के मुंह पर हाथ रख दिया और
जिंदा लोगों की तरह जीने का अहद करके उसके सामने से उठ गया। अपने लोग, अपनी धरती, अपनी फिजाएं जब अपने अंदर रची तो जाने क्यों किसी ने चुपके से मेरे कानों में कहा, तुम तो भारत से नाकाम वापस आए हो, लेकिन जो भारतीय एजेंट यहाँ काम कर रहे थे वो जरूर सरखरू हो गए हैं। देख लो, हमने खुद को हिंदू के रंग में रंग लिया है। हमारी सोचों पर उनका मीठा जहर जो टीवी और VCR की शक्ल में वो आहिस्ता आहिस्ता फैला रहे हैं, गालिब आता जा रहा है। हमने सोचना शुरू कर दिया है कि हम पंजाबी, पठान, बलोची और सिंधी हैं। हमें लीडर बताने लगे हैं कि किसने किसका हक खाया, लेकिन हमने किसी लीडर से ये नहीं पूछा कि किसने किसका हक के नमक अदा किया। तब दिल से एक ही दुआ निकली, इलाही इस खित्ते को अपनी अमान में रखना, कहीं तारीख खुद को न धुरा दे कि हमने उससे अभी तक कोई सबक नहीं सीखा। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे थे। एक दिन मैं घर से बाहर किसी दोस्त से मिलने गया हुआ था। जब घर लौटा, दरवाजे से दाखिल होते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं सोच भी नहीं सकता था कि कुदरत मुझ पर इतनी मेहरबान हो सकती है। मैंने अपने घर के आंगन में पूनम को बिल्कुल जिंदा सलामत खड़े पाया और मैं हैरान रह गया कि ये मेरे घर में कैसे पहुंच चुकी है। और साथ ही जब जसवंत की शक्ल मुझे नजर आई तो मेरे दिल में सारे ख्याल उजागर हो गए और मुझे एहसास हुआ कि दोस्ती के नाम पर और मोहब्बत के रिश्ते पर आज भी लोग यकीन और ईमान रखते हैं। जसवंत ने मेरे दिल की बात को महसूस कर लिया था और जसवंत ने पूनम को पाकिस्तान लाकर छोड़ा था। मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर पूनम मेरी जिंदगी में ना होती तो शायद मैं जी ही ना पाता। घर वालों को तो मैंने अहद करके बता दिया था कि मैं अब कभी भी जिंदगी में दुखी नहीं हूँगा, लेकिन मैं जानता था कि मैं कभी भी अंदर से पूनम के बगैर खुश नहीं रह सकता था। और जसवंत का मैं आज भी कर्जदार हूँ कि उसने मुझ पर वो एहसान किया कि शायद ही मैं सारी जिंदगी उसका बदला दे सकूंगा। आज पूनम के और मेरे 2 बच्चे हैं और पूनम अक्सर मुझे कहती है कि वो भी हमारे बच्चों को पाक सफाई जरूर बनाएगी।